Good morning, student. Today we read our second chapter, Constitutional Design. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि why do we need constitutions and what are the different things are present in the constitution and who made our constitution. All these things come under this chapter. Let's take an overview of this chapter. We noted in the previous chapter that in a democracy the ruler are not free to do what they like. हमने पहले भी पढ़ा है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर रूलर्स आर नॉट फ्री, यानी जो शासक है वो फ्री नहीं है टू व्हाट दे लाइक, कि जो उनकी मर्जी हो वो कर सके. देयर आर सर्टन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ बेसिक आधारभूत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, एंड द गवर्नमेंट या सरकार है, हैव टू फॉलो, उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसे जितने भी रूल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, sets of rules and regulation. Sets of rules and regulation. Sets of rules and regulation. Sets of rules and regulations are known as constitution. All such rules together are called constitution. As the supreme law of the country, the constitution determines the right of citizen, the power of the government and how the government should function. अब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारे देश का सुप्रीम लॉ है. तो वो क्या करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन. इट डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करेगी. In this chapter, we ask some basic question about the constitutional design of a democracy. Why do we need a constitution? How is the constitution drawn up? Who designed them and in what way? What are the values that shape the constitution in democratic state? Once a constitution is adopted, can we make changes later as required by the changing conditions? अभी बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, constitutional design of a democracy. And what are the topic covered in this chapter? That is, why do we need a constitution? हमें constitution की आवश्यकता क्यों पड़ती है? And how are the constitution drawn up? और constitution को किस तरह से बनाया गया? Who designed them? किसने उन्हें डिज़ाइन किया? And in what way, और किस तरह से? What are the values that shape the constitution in democratic states? मैं बोल रहा कौन कौन सी values है जिन्होंने constitution को shape किया. Once a constitution is accepted, अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कैन वी मेक चेंजेस, क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन, जैसे कि कंडीशन चेंज होती रहती है उस हिसाब से. वन recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South African went about this task of designing their constitution. Then we turn how the Indian constitution was made, what its foundational values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizen life and that of government. अब ये बता रहा है कि हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले साउथ अफ्रीका से पढ़ेंगे. यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पर क्या चीज़ हुई और किस तरह से वहाँ पर डिज़ाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके बाद में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो बना, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं और कैसे गुड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है उसके सिटीज़न को और दैट ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी. लेट स्टार्ट दिस चैप्टर विथ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे हैं. आई हैव फॉट अगेंस्ट white domination and I have fought against black domination. अब यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला हैं वो क्या बोल रहे हैं, मैं जो गोरों का प्रभाव है उसके अगेंस्ट भी लड़ा और जो
कालों का प्रभाव है उसके अगेंस्ट भी लड़ा। आई चेरिश द आइडियल of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities। अब वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी सोसाइटी की कामना करता हूँ जहाँ पर लोग बाग एक साथ मिलजुल कर रहें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में रहें, यानी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। यह वह आदर्श है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और उसे पाना चाहता हूँ। बट इफ नीड्स बी इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। अगर इस आइडियल के लिए, इस आदर्श के लिए अगर मुझे मरना पड़े तो मैं उसके लिए भी क्या हूँ, तैयार हूँ। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेशन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ये नेल्सन मंडेला थे जिन्हें देशद्रोह के आरोप में जो साउथ अफ्रीकन, जो वाइट की साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है, उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। ही एंड 7 अदर लीडर वर सेंटेंस्ड टू लाइफ imprisonment in 1964 to daring to oppose the apartheid regime in his country। उनके और उनके साथ में 7 जो अदर लीडर्स थे उनको लाइफ टाइम जेल के अंदर डाल दिया गया 1964 के अंदर फॉर अपोजिंग अपार्थाइड रिजाइम इन द कंट्री। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड। और उन्होंने अपने अगले 28 साल कहाँ पर निकाले, जेल के अंदर, और उस जेल का नाम था रॉबिन आइलैंड। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ कलर, यानी कलर के आधार पर भी क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, वो क्या कहलाता है, अपार्थाइड कहलाता है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white European imposed this system on South Africa। और जो वाइट यूरोपियन थे उन्होंने ये सिस्टम साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर लगा रखा था। During the 17th and 18th century, the trading companies for Europe occupied it with arms and force। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ पर जो ट्रेडिंग कंपनी थी यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने यहाँ पर आर्म और फोर्स से अधिकार कर लिया। इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जिस तरह से उन्होंने इंडिया पर ऑक्यूपाइड किया था। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका एंड बिकम द लोकल रूलर। इंडिया की तरह ही क्या हुआ, जो लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स थे वो साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए और वहाँ पर लोकल रूलर बन गए। The system of apartheid divide the people and label them on the basis of their skin color। और जो apartheid जो सिस्टम था उसने क्या कर दिया, लोगों को डिवाइड कर दिया और उन पर लेबल लगा दिया उनकी स्किन कलर के आधार पर। The native people of South Africa are black in color। They are made up about 3/4 of the population were called black। और जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, जो 3/4 लोग बाग थे वो क्या थे, ब्लैक थे कलर में। Beside these two groups, there were people of mixed races। और इन वाइट और कालों के अलावा कुछ लोग बाग मिक्स्ड रेसेस के थे, who were colored, जो कलर थे, and people who migrated from India, और जो लोग बाग इंडिया से आए थे वो भी वहाँ पर थे। The white ruler treated all non-white as inferiors। The non-white did not have voting right। और वो जो वाइट रूलर्स हैं वो क्या, जो नॉन वाइट थे उनको इन्फीरियर, अपने से छोटा समझते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। अब देखिए क्या क्या सिस्टम वहाँ पर हुआ। अपार्थाइड जो सिस्टम है उसने बहुत ज़्यादा शोषण किया ब्लैक लोगों का। उन्हें जहाँ पर लोग बाग वाइट एरिया में जो लोग बाग रहते थे उस जगह घुसने नहीं दिया जाता था। दे कुड वर्क इन वाइट एरिया, अगर उन्हें वाइट एरिया में वर्क करना है तो देन इट
then they get permission by the white people. Train, buses, taxis, hotel, hospital, schools and colleges, libraries, cinema hall, theaters, beaches, swimming pools, पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक. अभी बोल रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर ट्रेन्स, बसेस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट, ऑल आर सेपरेट फॉर वाइट एंड ब्लैक. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेशन. सेग्रेशन इसको क्या बोलते हैं? सेग्रेशन बोलते हैं. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप. वो उन चर्च के अंदर भी नहीं जा सकते थे जहाँ पर वाइट वर्शिप करते थे. ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. ब्लैक को अधिकार नहीं था कि वो अपना समूह बना सके और प्रोटेस्ट कर सके इस टेरिबल ट्रीटमेंट के विरुद्ध. सिंस 1950 the black color and Indian fought against the apartheid system. They launched protest against and strike. The African National Congress was the umbrella organization that held the struggle against the policies of segregation. 1950 से पहले, since 1950 से the black color and Indian, जो black कलर थे और जो इंडियंस थे उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई लड़ी. दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक. और उसके लिए उन्होंने क्या बनाई? एक पार्टी बनाई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रेशन. जिन्होंने सेग्रेशन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी. दिस इंक्लूड मैनी वर्कर यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी. मैनी सेंसिटिव वाइट आल्सो ज्वाइन the African National Congress to oppose apartheid and playing a leading role in the struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. अब 1950 में क्या हुआ? जो ब्लैक्स थे, जो ब्लैक और कलर इंडियंस थे, उन्होंने साथ में मिलकर अपार्थाइड के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और उसमें बहुत सारे वर्कर्स की यूनियन थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी और कई जो सेंसिटिव वाइट्स थे वो भी, उन्होंने भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया अपार्थाइड के विरोध के लिए. और सेवरल कंट्रीज़ ने क्या किया? ये अनाउंस कर दिया कि जो अपार्थाइड है वो क्या है? एक अनजस्ट यानी एंड रेशिस्ट यानी एक गलत चीज़ है. बट द वाइट, लेकिन जो वाइट रेशिस्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने कंटिन्यू क्या किया? टॉर्चरिंग करना और थाउजेंड ऑफ ब्लैक और कलर पीपल को मार दिया. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. टुमारो वी रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. इन दिस टॉपिक वी कवर 3 points, that is the organization which work for the apartheid in Africa, that is African National Congress, and what is segregation, what do you mean by term apartheid. Thank you.